अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज लेक्चर नंबर 2 में हम रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं और रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं जिसके लिए हमें टेक्स्ट बुक्स से रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो टेक्स्ट बुक की तरफ आते हैं। मैं एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट पढ़ता जाता हूँ, साथ साथ उनके आंसर्स भी डिस्कस करता जाता हूँ। नंबर 1, a group frequency table is also called frequency distribution. Option B, a histogram is a set of adjacent rectangles. A frequency polygon is a many-sided closed figure. Option A, a cumulative frequency table is also called less than cumulative frequency distribution. Number 5, in a cumulative frequency polygon, frequencies are plotted against upper class boundaries. Number 6, arithmetic mean is a measure that determines the value of the variable under study. इसकी जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, नंबर deviation is defined as a difference of any value of the variable from a option A constant. Data in the form of frequency distribution is called group data. Mean of a variable with similar observations, say constant k is k itself. Mean is affected by change in origin. Mean is affected by change in scale. The sum of the deviation of variable x from its mean is always 0. उसके बाद नेक्स्ट है the nth positive root of the product observation is called geometric mean. The value obtained by reciprocating the mean of reciprocals of observation is called harmonic mean. The most frequent occurring observation in a data set is called mode. The measure which determines the middlemost observation in a data is called median. The observation that divide a data set into 4 equal parts are called quartiles. The spread or scatterness of observation in a data set is called dispersion. The measures data used to determine the degree or extent of variation in a data are called measures of dispersion. The extent of variation between two extreme observations of a data set is measured by range. The mean of the squared deviation observation from the arithmetic mean is variance. The positive square root of the mean of the squared deviation of the observation from the arithmetic mean is called standard deviation. तो ये थे MCQs। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस का, जो कि स्मार्ट सिलेबस में मेंशन है। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन क्लास लिमिट। अब क्लास लिमिट की जो डेफिनेशन है वो उसका रेफरेंस आपको मिल सकता है पेज नंबर 110 पर। पहले तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस का रेफरेंस मिल सकता है पेज नंबर 110 पर। तो हम पेज नंबर 110 पर आ रहे हैं। अब पेज नंबर 110 को अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, जो डेफिनेशन है वो है डिफाइन क्लास लिमिट्स। तो क्लास लिमिट्स को हमने डिफाइन करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले इस एग्जांपल की तरफ गौर से देखना होगा। इसमें जो क्लास इंटरवल्स हैं 0 to 9, 10 to 19, जो ग्रुप्स बने हुए हैं 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, ये सारे ग्रुप्स में जो एक लोअर वैल्यू है और एक अपर वैल्यू है, एक स्मॉलर वैल्यू है और एक ग्रेटर वैल्यू है। तो इनकी जो बाउंड्रीज हैं 0 और 9, इनमें से जो स्मॉलर वैल्यू है वो भी क्लास लिमिट है, अपर वैल्यू भी क्या है? क्लास लिमिट। तो जो स्मॉलर वैल्यू है इसको हम लोअर क्लास लिमिट कहते हैं और जो बड़ी वैल्यू है इसको हम अपर क्लास लिमिट, और 0 को लोअर क्लास लिमिट और 9 को अपर क्लास लिमिट। 10 लोअर क्लास लिमिट है और 19 अपर क्लास लिमिट है। 20 लोअर क्लास लिमिट है, 29 अपर क्लास लिमिट है। 30 लोअर क्लास लिमिट है और 39 अपर क्लास लिमिट है। और इसकी क्लास लिमिट्स की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यूज डिफाइंड फॉर अ क्लास और group are called the class limits. The minimum value is called the lower class limit and the maximum value is called the
अपर क्लास लिमिट। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो लोअर क्लास लिमिट है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अपर क्लास लिमिट है। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन जो है सेकंड पार्ट में वो है क्लास मार्क। अब क्लास मार्क क्या है? किसी भी क्लास इंटरवल जैसे 0 to 9 क्लास इंटरवल है, 10 to 19 क्लास इंटरवल है, 20 to 29 क्लास इंटरवल है, इसकी जो मिड पॉइंट है उसको हम क्लास मार्क कहते हैं। अब मिड पॉइंट का मतलब है इसकी सेंट्रल वैल्यू, और इस सेंट्रल वैल्यू को आप मीन भी समझ सकते हैं। तो मीन कैसे फाइंड करना है? आपने लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट्स इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। 0 और 9 को ऐड किया तो क्या आ गया? 9। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5। 10 प्लस 19 29, 2 से डिवाइड करेंगे 14.5, और इन 20 और 29 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 30 और 39 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये इनके मिड पॉइंट या क्लास मार्क्स आते जाएंगे। इसका एक शॉर्टकट भी है कि फर्स्ट वन का आप मिड पॉइंट फाइंड कर लें, जैसा मैंने आपको बताया, लोअर और अपर लिमिट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करें जो कि 4.5 आ गया। उसके बाद इन क्लास इंटरवल्स के साइज़ ऐड करते जाएं। तो क्लास इंटरवल का साइज़ यानी इनके लोअर लिमिट्स के दरमियान डिफरेंस या अपर लिमिट्स के दरमियान डिफरेंस कितना है? 10 का, तो वो उसमें ऐड करते जाएं। 4.5 में 10 का ऐड करें तो 14.5, 24.5, फिर 10 ऐड करें 34, फिर 10 ऐड करें 44.5, फिर 10 ऐड करें 54.5। तो देख लें यहाँ पर साइज़ क्या है? 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10। तो जो साइज़ है वो आपने फर्स्ट मिड पॉइंट फाइंड कर लें और इसके बाद वो साइज़ इसमें ऐड करते जाएं, तो आप इनके मिड पॉइंट या क्लास मार्क भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट ये क्लास मार्क क्या है, इसकी डेफिनेशन भी इसी पेज पर गिवन है। फॉर अ गिवन क्लास द एवरेज ऑफ दैट क्लास obtained by dividing the sum of upper and lower class limits by 2 is called the midpoint or class mark of that class। इसके बाद जो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है वो है व्हाट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर भी आपको इस टेबल से ही मिल जाएगा। तो फ्रीक्वेंसीज जो कि करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आई है क्लास इंटरवल में, फ्रीक्वेंसीज हैं। यानी 0 to 9 जो ऑब्जर्वेशन है वो 2 हैं, 10 to 19 कितनी ऑब्जर्वेशन हैं? 10, 20 to 29 5 हैं। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है कि फर्स्ट वन एज इट इज़ आ जाएगी, तो सेकंड में फर्स्ट को ऐड कर देना है, 2 + 10 12 हो गया। फिर थर्ड में फर्स्ट 2 का सम ऐड कर देना है, फोर्थ में फर्स्ट 3 का सम ऐड कर देना है, नेक्स्ट वन में 26 + 6, फिर जो सम है 32 में 7 ऐड कर देना है, फिर सम 39 है उसमें 1 ऐड कर देना है। तो इस तरह आप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की भी डेफिनेशन लिखी है, द टोटल ऑफ द फ्रिक्वेंसी अप टू द अपर क्लास लिमिट और बाउंड्री इज कॉल्ड द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन आपको इसी पेज पर मिल जाएगी। उसके बाद नंबर 4 डिफाइन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन आपको मिल सकती है पेज नंबर 108 पर। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर अरेंजमेंट, टेबुलेशन करनी है, अरेंजमेंट करनी है फॉर क्लासिफाइंग डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस falling in each group corresponding to the respective group. The data presented in the form of frequency distribution is called the group data। तो ये जो अभी आपने टेबुलेशन की है जिसमें ये ग्रुप्स बने हैं, उसके बाद टैली मार्क्स हैं और फिर उसकी corresponding फ्रीक्वेंसीज हैं, या इससे पहले जो आपने पेज नंबर 110 पर एग्जांपल डिस्कस की थी उसमें भी टेबुलेशन या अरेंजमेंट की हुई है। तो ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद नंबर 5 पर आ जाएगी हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम की डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपको मिल सकती है पेज नंबर 111 पर। अब हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम एक ग्राफ है। ये जो ग्राफ आपको सामने नज़र आ रहा है हिस्टोग्राम है। ये कैसा ग्राफ है? एडजेसेंट रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स का ग्राफ है। तो ऐसा ग्राफ जो कि किस फॉर्म में हो? एडजेसेंट रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स की फॉर्म में हो, उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम नाम देते हैं हिस्टोग्राम का। तो हिस्टोग्राम की क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? अ हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्टेड ऑन XY प्लेन।
तो ये आज का लेक्चर था, इसमें हमने MCQs को डिस्कस कर लिया और फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।